Good morning, students. This is KK Bhatt here. Once again, I am going to start the video of class 10th English first flight from the diary of Annie Frank. Dear students, in the previous video, I have explained the mostly paragraph. But today I am going to finish this lesson. In this previous video, I hope you will get a lot of benefits as well as enjoy much to hear the story of Annie Frank. Annie Frank was also like us. She reads in the class, enjoy with their friend. In this way, she just spend a very happy life. That is before the Nazi. But when Hitler came in power and captured Germany and started to kill the Jews, at this moment, Annie compelled to hide herself with their family, and hardship life start in that cruel time. Finally, before the end of the Second World, she lost her life, she lost her sisters. Only her father was saved, and with the help of father, now her diary came into the existence. Dear children, see here the paragraph, Mr. Kissing had a good laugh at my arguments. I have given the lecture on this topic. Now see here, Mr. Kissing had a good laugh at my argument. Here, writer just said that when Mr. Kissing read the arguments, the essay which has given by him, she understands the feeling of the girls. That is why he started to laugh. But when she proceeded to talk, मतलब जब उसने बात करना शुरू किया. But when she proceeded to talk my way through the next class, and when in the next class she started to talk, at that moment Mr. Kissing again became angry, and in angriness once again he assigned her the second essay. This time it was supposed to be on. He has given the topic to write an essay, an incorrigible chatterbox that cannot be correct, यानी असाध्य, कह सकते हैं असाध्य बातूनी लड़की, यानी ऐसी चीज़ जिसका इलाज न किया जा सके. तो फर्स्ट टाइम he given chatterbox, second time he given an incorrigible chatterbox, and Annie Frank also completed her essay on that particular topic, and after completing he handed it to Mr. Kissing, and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lesson. यानी आप कह सकते हो कि मिस्टर केसिंग जो है अगले 2 होल लेसन के दौरान उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई उनको मन में शिकायत नहीं आता, तो उन्होंने कोई भी पनिशमेंट उसको नहीं दिया. इट मीन्स in coming to
lecture. Mr. Kissing may tried to maintain his patience. That is why he had not given any punishment to her. यानी अगले 2 विशेष में उन्होंने पेशेंस को मेंटेन किया आपने और उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया. However, during the 3rd lesson, but when she started to teach 3rd lesson, यानी जब उन्होंने 3rd lesson पढ़ाना शुरू किया, he would finally had enough. He would finally lost her patience. उन्होंने अपना धैर्य खो दिया और क्या कहा, enough Annie Frank. Enough Annie, that is more Annie Frank. Enough मतलब it is more Annie Frank. You lost the limit. As punishment for talking in class, and once again he has given her punishments because of talking in the class. What is the punishment? Punishment was quick said Mr. Chatterbox. यानी जो punishment उनका था वो ये था कि मिस चैटरबॉक्स काव मतलब दैट इज इनडायरेक्ट कमेंट ऑन हर. ये जो टॉपिक था ये कहीं न कहीं इनडायरेक्ट कमेंट था उसके ऊपर, उस लड़की के ऊपर. क्विक सेड मिस्टर चैटरबॉक्स. दैट इज द इनडायरेक्ट कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर गर्ल. एंड फाइनली शी एडमिट एंड रेडी टू write the topic on this particular lesson. So what happened? See here in the next paragraph. When Mr. Kissing gave her homework to write quick, said Mr. Chatterbox. That is very ridiculous topic. That is very ridiculous topic. एक बहुत ही भद्दा टॉपिक था. The class rolled, hearing this interesting topic. The whole class just started to cry. पूरा क्लास जो है रोल करना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया. And I had to laugh too. And Frank also joined the laughing club. यानी उस laughing club में एनी फ्रैंक भी ज्वाइन कर ली, यानी उसने भी हंसना शुरू कर दिया. Though I would nearly exhausted my ingenuity. देखो इसका मतलब होता है ओरिजिनलिटी एंड इन्वेस्टिवनेस. यानी जो सरलता से जो चीज़ें वो लिख लग सकती थी, यानी जो इमेजिनेशन था, कल्पना शक्ति थी, वो डैट इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड. वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स. यानी 2 बार उसको चैटर बॉक्स का टॉपिक मिला था. उस चैटर बॉक्स के टॉपिक पे जो उसके अंदर कल्पना शक्ति थी, जो इमेजिनेशन पावर था, जो लिख सकती थी, सोच सकती थी, वो लगभग एग्जॉस्ट कर गया था, लगभग इम्पिटी हो चुका था. नाउ शी हैज़ नो मोर टू रे अबाउट द टॉपिक. ये उसकी थिंकिंग थी, ऐसा वो सोच रही थी कि शायद उसके पास अब और टाइम नहीं है कि वो जो है इसको आगे एक्सप्लेन कर सके. Now see here, it is time to come up with something else, something original. वो डिसाइड करती है कि भाई देखो अब हम इस टॉपिक को कुछ अलग तरह से लिखेंगे जो बिल्कुल डिफरेंस होगा और बिल्कुल ओरिजिनल होगा, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होगा. ठीक है. ये डिसाइड टू राइट द टॉपिक इन सम डिफरेंट वे दैट इज़ मे बी कम्प्लीटली ओरिजिनल. तो उस ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर उसने लिखने के लिए सोचा. तो व्हाट हैपेंड, माय फ्रेंड सेन. उस सेन कौन थी? उसकी एक फ्रेंड्स थी. हु इज़ गुड एट पोएट्री. इट मीन्स जो सेन थी वो पोएट्री बहुत अच्छा लिखती थी, कविता बहुत अच्छा लिखती थी. जैसे बेटा हर बच्चों की अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, कुछ न कुछ सबके पास स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती है. कोई सिंगिंग बहुत अच्छा कर लेता है, कोई राइटिंग बहुत अच्छा कर लेता है, कोई स्पीकिंग बहुत अच्छा करता है, कोई गेम में बहुत अच्छा होता है, कोई आर्ट में बहुत अच्छा होता है. उसी तरह से मिस जो सेन थी वो पोइट्री बहुत बढ़िया लिखती थी. पोइट्री मतलब वो पोइट्री बहुत अच्छा लिखते थे.
ऑफर्ड टू हेल्प मी, इट मीन्स जो सेन गर्ल्स थी उसने उसको ऑफर्ड किया, फॉरवर्ड फॉर हेल्प हर, मैंने उसने उसको सहायता करने के लिए उससे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ लेट मी टू हेल्प यू, उसने कहा कि भाई मुझे सहायता करने दो, सो दैट शी कैन एबल टू हेल्प हर। हु इज़ गुड इन पोएट्री ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द essay फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, वर्स माने होता है पंक्तियाँ, कविता, ठीक है, इन जो उसको बोलते हो पोएम की लाइनें, तो कविता के रूप में, पोएम के रूप में उसने लिखने के लिए उसने कहा कि देखो मुझे हेल्प करने दो, मैं तुम्हारी राइटिंग में हेल्प करना चाहती हूँ और मैं इससे को कविता फॉर्म में शुरू से लास्ट तक लिखना चाहती हूँ। एंड आई जंप फॉर जॉय व्हेन शी हर्ड दैट Shani wants to help her, and also that is unique because she wanted to help her with poetry. Hearing this, she became very happy, and she starts jump because of happiness. Mr. Kissing was trying to play a joke on me. Here, Anne Frank said that was need to give the homework again and again, because Mr. Kissing was trying to play a joke on her. Because Mr. Kissing want to make a joke on her, उसके ऊपर एक मजाक बनाना, उसको ऊपर एक मजाक करना चाहते थे, उसको एक मजाक के विषय वस्तु बनाना चाहते थे। उसके पीछे इंटेंशन ये था कि सी स्टार्ट टू टॉक इन द क्लास, ताकि वो क्लास में बात करना बंद कर दे, ये उनका इंटेंशन था। दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड टू ठीक है, गेव हर टॉपिक टू राइट इससे अगेन एंड अगेन विथ दिस रेडिकुलस मैंने अभी बताया था आपको, रेडिकुलस मीन्स क्या होता है, भद्दा सब्जेक्ट, ठीक है। तो रेडिकुलस मीन्स क्या होता है, रेडिकुलस सब्जेक्ट मीन्स बहुत ही भद्दा सब्जेक्ट जो होता है उसको बोलते हैं रेडिकुलस। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन वो भी एनी फ्रैंक भी कम नहीं थे, उसने कहा कि आई वुड मेक श्योर, मैं निश्चित रूप से एक ऐसी पोएम लिखना चाहती थी ताकि ये जो जोक मुझ पे वो करना चाह रहे वो जोक बिल्कुल जाके उनके ऊपर फिट बैठे। दैट इज़ वाई शी वांट टू राइट ए पोएम जस्ट मैच टू हर। I finished my poem. Finally, she had finished her poem. अंततः उसने अपना पोएम समाप्त किया, मतलब with the help of Sen, at last she was succeeded to complete her poem, and it was beautiful. This poem was too beautiful. पोएम कैसे थी, बहुत ही सुंदर पोएम थी, बहुत ही सुंदर पोएम थी। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर डक। अब देखो ये बता रहे हैं कि उसने कहा कि मैंने अपनी पोएम समाप्त कर दी और ये बहुत ही सुंदर पोएम थे, और इतना ही नहीं, इट वॉज अबाउट, उसने टॉपिक जो चूज किया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, वो था इट वॉज अबाउट ए मदर डक। ये जो पोएम थी वो बेस कर रही थी, किसको बेस कर रही थी, मदर डक मीन्स होता है बत्तख, आप जानते ही हो, एक बत्तख थी, उसके माँ को रिलेटेड कर रही थी। एंड ए फादर स्वान मीन्स जानते हो हंस होता है, और उसके पिता थे कौन, स्वान, विथ 3 बेबी डकलिंग, 3 चूजे थे, यानी जो डक थे और स्वान के 3 चूजे थे। हु वर बीटेन टू डेथ, जिनको मार मार के मौत के घाट उतार दिया गया, किसके द्वारा, बाय द फादर, उसके पिता के द्वारा, यानी फादर स्वान के द्वारा उसे मार के मौत के घाट उतार दिया गया। रीज़न क्या था, बिकॉज दे क्विक टू मच, उसके पीछे रीज़न ये था कि वो बहुत ज़्यादा काँव करते थे, यानी उनकी आवाज़ को सुन करके जो स्वान था वो बहुत इरिटेट होता था। एंड फाइनली ही
beat him badly, and because of beating badly, the duck, the 3 baby duckling were killed. उनको जान से मार दिया जाता है। इस तरह से उसने एक पोयम कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे जो फादर स्वान हैं वो मिस्टर किसिंग के रूप में उसने प्रस्तुत किया था और स्वयं को एक डकलिंग के रूप में प्रस्तुत किया था। मतलब इनराइट जो पोयम था वो एड्रेसिंग पोयम था टू एनी फ्रैंक एंड मिस्टर किसिंग। लकली Mr. Kissing took the joke the right way. It is good that Mr. Kissing admitted the sense of the joke in right way. अर्थात तो आप कह सकते हो कि लकली मिस्टर जो केसिंग है उन्होंने जोक को सही रूप में पकड़े गए, वो जोक को सही रूप में अंडरस्टैंड किए, जिसका परिणाम ये हुआ जब उन्होंने सही रूप में उस जोक को एडमिट किया तो उसको अपने आप से कंपेयर करके उस पोएम को देखे। अर्थात हियर वी कैन से दैट फादर स्वान जस्ट कंपेयर्ड विथ मिस्टर केसिंग एंड हियर बेबी डकलिंग जस्ट कंपेयर्ड विथ एनी फ्रैंक। इन दिस वे, in this through the poem, Anne Frank want to tell him that he was a cruel father. He was a cruel father. He want to kill her because of quaking. That is the main point on which he tried to convince. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class. अर्थात मिस्टर केसिंग read the poem in the class, adding his own comment. He was not only read the poem in the class, but also he added his own comment on that particular topic. उस particular topic पे उन्होंने comment भी किया, अपना खुद का उन्होंने comment किया, and to several other classes as well as. मतलब आप ये कह सकते हो कि मिस्टर केसिंग was not to read the poem in the class of Anne Frank and get the comment, but also he went to many classes to read the poem and give the comment. In this way, he realized that here, the father swan just addressing him, finally understand his cruelty. And after that poem, he changed his personalities. Since then, I have allowed to talk. A great change came in his life. Because after that poem, Mr. Kissing just completely changed his life. Mr. Kissing जो है completely changed his life. उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन को बदल दिया। मिस्टर केसिंग जस्ट चेंज हिज लाइफ एंड ही बिकेम मॉडरेट, ही लेफ्ट हिज स्ट्रिक्टनेस एंड आफ्टर दैट ही allowed Anne Frank to talk in the class as he wished. So since then I have allowed to talk her and haven't been assigned any extra homework. He not only allowed her to talk in the class, but also he stopped not to give her any extra homework. यानी जो एंग्री होकर के वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, अब उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देना भी बंद कर दिया. Now start to give her extra homework. On the contrary, इधर contrary मीन्स होता अपोजिट, उसके अपोजिट. मतलब आफ्टर रीडिंग द पोएम द पर्सनालिटी ऑफ मिस्टर केसिंग हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज. जो पर्सनालिटी थी मिस्टर केसिंग की वो पूरी तरह से चेंज हो गई. कैसे चेंज हो गई? लुक हियर. मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज. यानी इस समय जो है मिस्टर केसिंग जो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, जो बहुत ही गुस्सैल टाइप के थे, छोटी छोटी बात पे बच्चों को पनिशमेंट देते थे,
Now his personality has completely changed. And Mr. K. Singh not become serious but also making joke in the classes. यानी वो सीरियस ही नहीं थे बल्कि क्लासेस में वो क्या करते थे, जोक भी सुनाते थे, बच्चों को जोक भी सुनाते थे. तो that is the completion of your lesson. I hope you will understand the lesson well. If you have any problem, you can talk through the WhatsApp group. Thanks to watch my video. I hope you will like and subscribe my channel. Once again, thank to watch my video.